Spring Stories of Stolen Childhood. The chapter is written by Anis Jung, who was born in Rourkela, a city in Odisha, and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were writers. She also began writing for India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. The chapter Stories of Stolen Childhood is taken from a book, The Lost Spring. The chapter is divided into two parts, continuing the author's first-hand experience with poverty and traditions prevailing in some parts of India. The first part describes the plight of the poor ragpickers of Simapuri. The second part describes the miserable conditions of the bangle makers of Firozabad. Now let's come to the chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. The story is of Sahib, a ragpicker of Simapuri. Here it means I find a rupee in the garbage. It means that he does not find a rupee or notes or coins, but except means he find a little. He was able to manage little bit of money by selling the garbage. That is either the plastic bottles, the packets, or something else. He was able to manage little bit of money. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scouting for gold in the garbage dumps of my neighborhood. The author Anis Jung asked Sahib that तुम डेली ये क्या काम करते हो, मीन्स गार्बेज में तुम क्या ढूंढते हो. स्काउटिंग मीन्स सर्चिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड मीन्स आइदर द इम्पॉर्टेंट मीन्स लाइक प्लास्टिक्स, bottles, packets, in the garbage dumps of my neighborhood. Every morning, the author meets Sahib and his friends searching for gold in the garbage dumps of our neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. Sahib and his family hail from Bangladesh, means they belong from Bangladesh, but they have left their home a long time ago. वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और अपना घर उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था. Because there were so many of storms washed away their fields and homes, reducing them to a state of abject poverty. उन्होंने वहाँ पे स्टॉर्म्स आई थी, आंधी तूफान आए थे, जिसकी वजह से उनकी फील्ड्स और उनकी होम्स सब डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी. That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. इसीलिए वो अब बांग्लादेश से माइग्रेट करके मूव ऑन करके वो दिल्ली आ गए थे. दिल्ली मीन्स सीमापुरी. सीमापुरी इज द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड देयर दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क. वहाँ पे आकर उन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया. मीन्स गार्बेज में कुछ चीज़ें उन्होंने सर्च करनी शुरू कर दी और वहाँ से वो गार्बेज को सेल करके थोड़ा बहुत अर्निंग करते थे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. गार्बेज ढूंढते समय वो नरेटर ने उससे पूछा था, अनिल जंग ने उससे पूछा था कि तुम ये क्या क्यों करते हो. तो साहिब कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा कुछ काम नहीं है करने के लिए. गो टू स्कूल आई से ग्लेबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. ऑथर ने उससे कहा, अनीस जंग ने साहिब से कहा स्कूल जाओ. उसने बहुत ऐसी फ़नी वे में कहा, मीन्स विद प्ले, ऐसी बस ऐसी यूजली कह दिया. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. The author asks Sahib that why he does rag picking and does not go to school. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. साहिब कहता है मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है और जब कोई वहाँ पे स्कूल बन जाएगा तब मैं चला जाऊँगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says smiling broadly. ऑथर ने ऐसे ही मजाक में कहा अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे. तो वो कहता है येस आई विल कम. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी. कुछ दिनों बाद ऑथर क्या देखती हैं, साहिब उनके पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड. नरेटर ने उससे सिर्फ ऐसे ही कहा था कि अगर मैं स्कूल चलाऊंगी क्या तुम आओगे. तो उस बात को उसने बहुत सीरियसली ले लिया और नरेटर ने उससे कहा स्कूल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है. द ऑथर इज़ वेरी एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड.
ऑथर को पता था कि एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि कभी उनके लिए पूरा नहीं हो सकता, और ऐसे प्रॉमिसेस पुअर पीपल्स के लिए पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएंगे। मीन्स लोग उनसे प्रॉमिस करते हैं पर एक्चुअली उसको फुलफिल नहीं करते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। काफ़ी टाइम बाद ऑथर ने उससे उसका नेम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसने कहा मेरा नाम है साहिब आलम, बट उसको पता नहीं था कि साहिब आलम का मीन्स क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसको उसका मीनिंग पता होता, मीन्स साहिब आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो अगर उसको उसका मीनिंग पता होता तो वो उसको इस चीज़ पे बिलीव करने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि उसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का किंग, बट एक्चुअली वो एक सिंपल रैग पिकर था। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सबसे अनअवेयर होकर, मीन्स उससे इस सब की कोई परवाह नहीं थी, अपने फ्रेंड्स के साथ वो डेली मॉर्निंग में आता था, स्ट्रीट्स में रोम करके गार्बेज पिक करता था। और वो सारे बॉयज़ जो थे बेयरफुट बॉयज़ थे। बेयरफुट मीन्स उनके पास वेयर करने के लिए पैरों में कोई भी चीज़ें नहीं थी, कोई भी फुटवेयर्स नहीं थे। अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह बर्ड्स की तरह आते थे और दोपहर होने तक वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते थे, मीन्स अपना काम करके चले जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। नरेटर कहती है कि काफ़ी टाइम देखने के बाद मैं उनको बहुत अच्छे से सबको पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। ऑथर पूछते कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी। माई मदर्स डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने कहा मेरी मम्मी मेरे को दिलाती नहीं है। He said that his mother does not bring them down from the shelf, और even if she did, he will throw them off। और अगर वो हमें शूज़ दिलाते भी हैं तब भी हम उन्हें नहीं पहनते। Adds another who is wearing shoes that do not match। ये दूसरा लड़का कहता है जिसने शूज़ तो पहन रखे थे पर वो मैच नहीं करते, मीन्स दोनों पेयर्स में नहीं थे, अलग अलग शूज़ थे। Another says he wants shoes। When I comment on it, shuffles his feet and says nothing, I want shoes। जब ऑथर ने उसके शूज़ पर कमेंट करा कि तुम्हारे पेयर्स मैच नहीं करते, तो उसने अपनी फीट शफल कर ली और कुछ नहीं कहा, और उसने भी कहा आई वॉन्ट शूज़। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तीसरा बॉय कहता है कि मेरे को शूज़ चाहिए, जिसने आज तक अपनी लाइफ में कभी शूज़ पहने ही नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैकफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। ऑथर ने सिटी में ट्रैवलिंग करते समय बहुत सारे विलेज में बच्चों को देखा है हु हैव सीन बेयरफुट, मीन्स जो चप्पलें जिन्होंने नहीं पहन रखी थी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और इसके लिए वो क्या एक्सप्लेनेशन है? वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन एंड नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये उनके लिए एक ट्रेडिशन है, मीन्स उनके पास मनी नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि मनी नहीं है, मनी होते हुए भी वो शूज़ वेयर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अभी हैबिचुअल बन चुका है, उनके लिए एक ट्रेडिशन बन चुका है। Anis wonders if this is just an excuse to explain away a perpetual state of poverty। Means, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, उनकी कंटिन्यूस पॉवर्टी के लिए ये एक एक्सप्लेनेशन थी कि पैसा ना होने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक ट्रेडिशन बना लिया था कि उनको शूज़ नहीं पहनने, चाहे पैसा हो या ना हो। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी के लिए। I remember a story a man from Udupi once told me। Udupi is a city in Karnataka। ऑथर को याद है कि एक बच्चा उदीपी में एक मैन उनसे कहता है, एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest। जब वो यंग बॉय था तब स्कूल जाते समय वो एक ओल्ड टेम्पल के सामने से निकल के जाता था, और जिस टेम्पल में उसके फादर प्रीस्ट थे, मीन्स वहाँ के पंडित थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल के सामने रुकता था और गॉड से शूज़ के लिए प्रेयर करता था कि मेरे को शूज़ चाहिए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। थोड़े 30 years बाद ऑथर वहाँ जाती हैं उसके टाउन, और वहाँ टेम्पल भी जाती हैं, जो कि वो टेम्पल में अब डिसोलेट हो चुका था, मीन्स वहाँ पे कोई भी पीपल नहीं थे। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। टेम्पल के बैकयार्ड में अब न्यू प्रीस्ट था और वहाँ पे वाइट और रेड प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक यंग बॉय आया जिसने स्कूल की ग्रे यूनिफॉर्म
सॉक्स और शूज़ पहन रखे थे, वो स्कूल से आया और अपना बैग फोल्डिंग बेड पर रख दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। और ये देखकर ऑथर को याद आ जाता है कि एक दूसरा बॉय भी था जिसको जो रोज गॉड से प्रे करता था शूज़ लेने के लिए। लेट मी नेवर लूज देम, जिसको शूज़ मिल गए थे वो ये प्रे करता था कि मेरे को ये शूज़ बहुत मुश्किल से मिले हैं और प्लीज़ मेरे को ये लूज़ नहीं करने, मीन्स मेरे को ये शूज़ को खोना नहीं है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी ये प्रेयर को मान लिया और उसकी प्रेयर को फुलफिल कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। प्रीस्ट के बच्चे भी अब शूज़ पहनते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रैक पिकर्स हैं और वो शूज़ अभी भी नहीं पहनते, मीन्स अभी भी वो शूलेस रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। वो कहती है कि मेरा अक्वेंटेंस मीन नोइंग पर्सन, उन रैक पिकर्स के साथ जानते हुए वो पता चलता है कि वो रैक पिकर्स सीमापुरी से हैं। सीमापुरी मीन्स अब वो सीमापुरी पर रहते हैं, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। प्लेस ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी मीन्स आउटस्कर्ट्स, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है। वो कहने को तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है पर मेटामॉर्फिकली वो बहुत दूर है दिल्ली से भी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, जो यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी पहले स्क्वाटर से बांग्लादेश के मीन्स बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, उनमें से एक साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, में उस समय सीमापुरी एक सिर्फ एम्प्टी प्लेस थी, एक फॉरेस्ट था। इट स्टिल इज बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, जो अब भी एक फॉरेस्ट ही है पर अब एम्प्टी नहीं है, मीन्स पहले वहाँ पे कोई नहीं रहता था पर अब वहाँ पे माइग्रेंट्स आकर रहने लगे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूट्स ऑफ टिन एंड टैपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। उनके घर मड से बने हुए हैं, मीन्स मिट्टी से बने हुए हैं, टिन टैपोलिन की रूफ्स हैं, वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, सीवेज है, ड्रेनेज सिस्टम भी ढंग का नहीं है, रनिंग वाटर पानी भर जाता है, और ऐसे स्लम एरिया में 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. वो यहाँ पर 30 years से आकर रहते हैं, means they were living here for the past 30 years, some even more, but without an identity. उनकी वहाँ पर कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनके पास एक राशन कार्ड है जिससे उनको वोटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है और उसकी हेल्प से वो वहाँ पे ग्रेन्स बाय कर लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनका मानना यह है कि पहचान से ज़्यादा खाना ज़रूरी है, मीन्स फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहचान से ज़्यादा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। वो कहते हैं अगर दिन के एंड होने पर अगर हम अपनी फैमिली को हम लोग अच्छे से 2 मील्स डे खा पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है वहाँ रहने से कि हम वहाँ पे हमें फील्ड्स में ग्रेन्स ही नहीं है। ऐसी जगह पे रहने से अच्छा तो यही है कि जहाँ पे हमें ग्रेन्स मिल जाए, यहाँ पे हमें फूड मिल जाए खाने के लिए। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। ये एक कुछ ग्रुप विमेंस का ग्रुप कहता है जो जिन्होंने टॉन साड़ीज पहन रखी थी। वो कहती हैं कि ये सब उनसे कहते कि ऑथर जब पूछते कि आपने अपना घर इतना ब्यूटीफुल रिवर वहाँ पे घर क्यों छोड़ दिया। फिर है चिल्ड्रन वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसलेट होम्स। जहाँ पर कहीं भी उनको फूड फाइंड होता है, मीन जहाँ कहीं भी वो फूड फाइंड करते हैं वो वहीं पर अपने टेम्प्रेरी टेंट्स बना लेते हैं और रहने लगते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन उसमें बड़े होते हैं और पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। सर्वाइवल पार्टनर्स मीन्स वहीं से वो अपनी अर्निंग शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और कैसे सर्वाइव करते हैं? रैक पिकिंग से, मीन्स रैक पिक करके वो अपने सर्वाइवल करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। बहुत साल पहले से ये एक फाइन आर्ट बन चुका, मीन्स उनके लिए हैबिचुअल बन चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it's even more.
गार्बेज ही उनके रहने का जरिया बन चुका है, मीन्स गार्बेज पे ही वो डिपेंडेंट है, गार्बेज की थिंग्स सेल करके पैसा अर्न करते हैं। टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज किसी गोल्ड से कम नहीं है। इट इज़ द डेली ब्रेड, उससे उनके डेली का रूटीन चलता है, उसी से अपने घर टेंट शिफ्ट कर पाते हैं, मीन्स टेंट्स बना पाते हैं। इट्स अ रूफ ओवर द हेड्स, मीन्स गार्बेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उनका खाना आता है, खाना अर्न करके मीन्स पैसा अर्न करके खाना खरीद पाते हैं, वही उनके शेल्टर का काम करता है। और इवन इफ इट्स अ लीकिंग रूफ, भले ही वो लीकिंग रूफ क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट्स इवन मोर, पर किसी बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स बट फॉर अ चाइल्ड इट्स इवन मोर। इट इज़ द ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, वो उनकी ओनली सपोर्ट और मीन्स ऑफ इनकम है, मीन्स उनकी इनकम का जरिया गार्बेज ही है और गार्बेज के अलावा और कुछ नहीं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, साहिब खुशी से कहता है कि कभी कभी तो मैं गार्बेज सेल करके 10 रुपी नोट्स भी अर्न कर लेता हूँ। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more. जब हम गार्बेज सेल करके कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं तो हमारी उससे उम्मीद और बढ़ जाती है कि मे बी हमें और ज़्यादा पैसा उससे मिल सकता है, मीन्स हम उसमें ढूंढना बंद नहीं करते। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू द पेरेंट्स। गार्बेज का डिफरेंट मीनिंग है, चिल्ड्रन के लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग। Anis, the author realizes that garbage holds a different meaning to both parents and children. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's means of survival. चिल्ड्रन के लिए वो तो बहुत वंडर्स है, वंडर्स भी बहुत खुशी की बात है, उनके लिए डिफरेंट एक्साइटिंग थिंग्स हैं। और पेरेंट्स के लिए वो जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि गार्बेज की हेल्प से उनको डेली अर्निंग हो पाती है थोड़ी सी, और उसकी मैनेज करके वो अपना खाना मैनेज कर पाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और चिल्ड्रन के लिए इट्स wrapped in wonders. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक विंटर की मॉर्निंग में ऑथर साहिब को देखती है कि वो एक नेबरहुड में क्लब में खड़ा होकर वॉच देख रहा है, मैं दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो कहता है मेरे को ये गेम अच्छा लगा, और वो खड़े होकर चुपचाप वहाँ फेंस के पास गेम को देख रहा होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है जब वहाँ क्लब में कोई भी नहीं होता ग्राउंड में तब मैं चला जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, वो कहता है गेट कीपर मुझे कभी कभी वहाँ पे झूलने दे देता है, मीन्स मेरे को कभी इंजॉय करने के लिए वहाँ पे दे देता है, वो अलाउ कर देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. उस समय साहिब ने शूज़ पहन रखे थे पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे, मीन बहुत अजीब लग रही थी उसकी ड्रेस, क्योंकि उसकी डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी फेडेड शर्ट और शॉर्ट्स पर बहुत अजीब से लग रहे थे वो शूज़। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब ऑथर ने उसके शूज़ की तरफ देखा तब वो समझ गया कि मेरे शूज़ देख रही हैं, और उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि किसी ने मेरे को ये शूज़ दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. वो उसके लिए बॉदर नहीं करता, वो एक रिच बॉय के शूज़ हैं, पर उसने ये क्यों डिस्कार्ड कर दिए, मीन्स उसने क्यों रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उसके शूज़ में एक छोटा सा होल हो गया था, तो इसलिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिए। बट साहिब को वो कोई बॉदर नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी शूज़ पहने ही नहीं, तो एक छोटे से होल होने पर भी उसके लिए ऐसा लगता है कि उसकी ड्रीम ट्रू हो गई, मीन्स उसकी ड्रीम पूरी हो गई। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, पर वो जो गेम देख रहा होता है वो उसकी रीच के बाहर था, मीन्स वो खेल नहीं सकता उसको, बिकॉज कोई उसको अलाउ नहीं करेगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर। उस मॉर्निंग साहिब अपने मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, मीन्स अब वो किसी मिल्क शॉप में काम करता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था, कैन थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, और फिंगर का इशारा करते हुए वो दिखाते हैं वो वहाँ पर वो टी शॉप है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वो कहता है कि मेरे को पूरे मंथ में 800 रुपीज़ अर्निंग होती है,
टी शॉप से मैं 800 रुपीज़ अर्न करता हूँ और पूरे दिन की जितनी भी मील्स हैं, मील्स मीन्स फूड। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, वो पूछता है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। ही अनीस जंग ऑथर से पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, बट अब उसके फेस पर एकदम वो आता है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, क्योंकि वो अब फ्री नहीं होता। अब वो किसी के लिए काम कर रहा होता है। पहले तो वो रैक पिक करता था, इंजॉय करता था, मैं बहुत खुश रहता था, पर अब उसके फेस पर थोड़ी सी टेंशन है। नो फ्रीडम ऑन हिज फेस, उसके फेस पर कोई भी फ्रीडम नहीं है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जो स्टील कनिस्टर होता है वो उस प्लास्टिक बैग जो वो बहुत आराम से पकड़ लेता था उससे ज़्यादा हैवी है। ओवर इज शोल्डर द बैग वॉज हिज, उसके शोल्डर्स पर स्टील कनिस्टर ज़्यादा हैवी था जो उसके बैग की कंपैरिजन से। जो उसका प्लास्टिक बैग था, गार्बेज वाला बैग, उसके कंपैरिजन में स्टील कनिस्टर ज़्यादा हैवी था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, वो कहता है जो कनिस्टर जो है वो टी शॉप वाले मैन का है, मीन्स जो मैन जिसका टी शॉप है उसका कनिस्टर है। हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब उसको उसके लिए काम करना पड़ता है, तो वो अपनी मन का कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है द कनिस्टर बिलोंग्स टू ओनर ऑफ द टी स्टॉल, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपनी मर्जी का कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि अब वो किसी और के लिए काम करता है। So this completes the part 1 of the chapter. Number 2, lost praying. That is, sometimes I find a rupee in the garbage.